Okay, hi everyone. So today's topic of group discussion, it's going to be based on, we are seeing that India has made in India policy has been going on, right? So Modi government has promoted about made in India. So what is the recent launch? We have launched about iPhone 15, sorry, and that was also made in India only. So now the question arises that can India become a manufacturing hub in future? So can India become a manufacturing hub in future? So like Modi government has even stated the statement that the India would be a kind of, you can say, a global manufacturing hub by 2030. You have to witness about this idea that are you in the favor of the statement? Are you against the statement? According to you, you consider that yes, India can become, why it can become. So you can tell me certain points with respect to it. Because of the government is very much, you can say, in promotion of that. And government is taking, you can say the policies have been promoted in that cases. We have a good export ratio in terms of import right now. So whatever points come to your mind in that state. If you are in the favor that no, India cannot become a manufacturing hub because there is lots of, you can say the laws which India might, you have seen the government laws, they take a lot of time. The skilled labor, we are not having a very good skilled labor. We do not have a good infrastructure. So according to you, whatever the pointers come, I just gave you a brief that you can go in the favor of this line also, you can go against this line also. Now, I'm going to give you tips how you need to introduce and conclude this topic. This topic is a kind of, you can say, promoting your own nation's worth also, and you're telling about the challenges which you might face. So it is about, like, good morning, everyone. The topic of today's discussion is that will India become a global manufacturing hub or no? So here we need to take into consideration number of pointers that you will be telling it in this case, like Ramakant will be introducing. So he'll be telling that manufacturing hub. So what is manufacturing hub? Where we can actually, the Make in India project will be there. We are not relying on many of, you can say, export things and everything. The skilled labor will be from India only. So this is a very challenging for us also because right now the projects like China is considered as a global and we are replacing it to an instant. So for one introductory line in that case. Then you have to say that, yes, I'm in the favor of it or I'm against it. Then you will open the house for discussion. Okay. Then you will say, okay, now I open the house for discussion. Everyone will come up their points. It is a kind of a discussion, not a debate. So you can go against this topic also. You can go in the favor of this topic also. So after you can speak on both the sides. Language is not a barrier again. You can speak in Hindi, you can speak in English, you can speak in both the languages, a mix or a blend of it. Right. Third is, it's not about speaking more. I always say you out. Speak very, you can say, reliable things. Speak very quality things, not over the quantity. It is not about speaking more. And last but not the least, I want to tell you one thing. If you go for some facts, like suppose I give you one fact, how many trillions we are importing or exporting, like just have an idea. Okay, so you tell me about $10 million trillion, how are you are exporting? You do not have an exact figure count. So do not say the exact figure like this. You can go with the statements like approximation of this word. Okay, always use approximation with the figure you are quoting. Okay, because you do not know, if you go for surfing over the internet, you will find number of changes in the factual figures, and it is all about factual figures also. And if you're not aware, suppose you're not aware anything about this topic, so talk about very, you can say, common things. What are the challenges India might face while you can say making some kind of a project, or India might not be in a good condition. So if you're not aware of anything about this topic, okay, go for some good examples. Like I just told you the example of iPhone 15 also, right? So it is the first time India, this is a built-in project in India. So that also you can promote in that level. Okay, go for any live examples, any common examples. Common examples are very much welcome. Go for attentiveness. Do not repeat your lines again and again. And there will be always a neutral ending. Whoever is going for an ending, I think Dheeraj. So take into consideration, you always have to go for such topics with a very neutral ending. The ending is like, patience is a watchword. So we all have to feel the patience. We have to rely it out. India can do a lot. And we know that India is a developing country. We have go from, you can say, cashless. We have already become the cashless economy. We have the huge population. You can even target the lines which I've used in my previous GDs. I give you one example. India has got
the maximum population as of now. But when benefit of this population is that the youth count, that is from 25 to 35, the age group is the highest. It is 60% of our population. 15 to 25 is the 50% of our population. So you understand, the youth is at the boom in India. This is the best thing because we do not have right now the old age at the highest population. We have the youth count, and youth can contribute and become reliable in any direction. So the conclusion should be very good, and do prepare your conclusion in a very nice manner where you're quoting some of the good points. You can say, yes, there are always challenges in this fact, but patience, with immense efforts and with the government policies, and we being the youth, we can do this and make India grow wonders. So this will be your entire topic. I know it's a bit tough to understand because you might not be getting lots of points, but that is what you have to learn, how to handle the situation. This topic can come in number of ways. What are the challenges being faced in India's becoming, you can say, global hub? Will India be becoming a manufacturing hub? Simply, you can talk about, can India compete China in terms of being a global hub? And this topic was there in the last, you can say, I think, IOCL ones, right? So last year, IOCL, this topic was there. So I'm just giving you what are the honors. This topic can come in multiple dimensions. So we have to target in all the domains. Right now, only can India become a manufacturing hub in future? That is my question. Clear? It will be 3 minutes for you, for everyone to jot down your points. I've already started the timer. It's 1:09 by my side, and I'll start at 1:12. You have 3 good minutes to jot down your points. At 1:12, we'll start, and we will go for at least 10 to 12 minutes of group discussion. Okay? And do not do a cat fight. And once you are attending for the first time, I think love. Right. You do not have to quote all the points in one go. You have to discuss one point at a time. Do remember, if you will speak more, you will make more mistakes. Only speak when you're very precise, concise, and attentive. Try it out for the first time. Okay. Right. And then there will be a conclusion. And okay. So your timer has already started. Go for the maximum noting of the points.
Okay, so already 1 minute up, I guess, 1:13, and you might have noted very good pointers as well, right? Okay, Yes, so now the discussion starts, and Ramakant, you can introduce the topic. Yes, ma'am. Hello, everyone. Thank you for giving me an opportunity to start our group discussion. Our today's group discussion topic is, can India become manufacturing hub in future? And let me first give the meaning of our topic. So manufacturing hub का मतलब ये है कि थ्रू आउट द ग्लोबल में वो कंट्री या फिर वो जो प्लेस जहाँ पर से सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो सके और ओवरऑल वर्ल्ड में सप्लाई हो सके, तो इंडिया डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग हब एक मेरे हिसाब से बन सकता है, क्योंकि ऐसे तो हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने हैं, पर वी नो दैट एवरी चैलेंजेस कम विद द ग्रेट अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो. सो लाइक in our country, if the population is a challenge, so there is also opportunity for the youth, because we have a larger youth percentage in our India. So definitely youth can be contribute more in this situation, in this topic. So I think definitely this. I would like to invite all others to come and contribute in this. Yes, so I think agree with India Ramakant, can be the like manufacturing you are- hub. Like As you if we mentioned, see on the मेरा ओपिनियन ये है कि इंडिया भी geopolitical मैन्युफैक्चरिंग हब level, बन सकता है, क्योंकि इसका एक रीजन है कि इंडिया के अंदर लार्ज और यूथफुल वर्क प्लेस है, और साथ में इंडिया जो इनिशिएटिव चल रहे हैं, लाइक मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हो गया, वो भी इसको काफी प्रमोट कर रहा है, और इंडिया के अंदर वो एक बहुत बड़ा मार्केट है कंज्यूमर का, वो भी इसको एक काफी एडवांटेज दे सकता है. yes, Yeah, so yeah. अगर Friend, we geopolitical can take level पे the बात advantage करें तो of अभी demographic मैं ये कहना dividend. चाहता हूँ चाइना कि जो है हमारा हम अगर देखते हैं पूरे First, ग्लोबल I think सिनेरियोज को अगर हम आज what देखने is के लिए creating जाते हैं, a lot of तो chaos, उसमें guys. सबसे ज्यादा Hello? इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि To get होल वर्ल्ड इज लुकिंग ऑन manufacturing ऑप्शन company फॉर के चाइना. com- अभी हम जो भी देख रहे हैं सारा का सारा चाइना जो है, चाइना सब कुछ हैंडल करके रखता है. सो एवरीवन इज कंसिडरिंग कि हमारे पास चाइना का कोई ना कोई एक बेटर ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, तो ग्लोबल इज कंसिडरिंग इंडिया एज दैट ऑप्शन. सो आई गेस इंडिया कैन रियली grab this opportunity to become the global manufacturing hub. I agree with discuss Sachin. जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास काफी टैलेंटेड इंजीनियर्स भी हैं जो कि फॉरेन कंट्रीज में वर्क कर रहे हैं. यूरोप कॉरिडोर. अभी हम देखते हैं कि चाइना को काउंटर करने के लिए भी इंडिया ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लॉन्च करा है, जो कि इनिशिएटिव है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, जो कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करेगा. तो इस तरह से हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग के को आउटसाइड से इंपोर्ट कर सकते हैं. ये अच्छा इनिशिएटिव लिया है. Yes. Yes. Also, we are signing lithium deposit is also found out in Jammu and Kashmir and Rajasthan. The lithium deposit that is found out in Rajasthan can fulfill 80% of the needs of lithium of India. So it can really make us Atmanirbhar Bharat, and also it can boost our electric vehicle industry. I want to list out some राजस्थान के अंदर ये जो लिथियम का भंडार मिला है, खंडेला के आसपास मिला है. Dividends that we consider for the population, I want to list out some that India has, requirements. that is I want very to list important out for the हमारा India to become the manufacturing hub. I want to Yes, list I out some agree कि requirements here. मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा. जैसे हमें पता है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है कि अगर हमें उसके लिए बहुत ज्यादा हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए, और हमें पता है कि जैसे इंडिया इज वन ऑफ टॉप 5 की, अगर हम बात करें कि टॉप 5 में आता है कि जो जिसकी जीडीपी टॉप 5 में वर्ल्ड में है, तो मुझे लगता है कि इंडिया के पास फाइनेंशियल पावर भी है कि वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, और इंडिया के पास इन्वेस्टमेंट है मुझे लगता है. आप सही बोल रहे हैं, और मैं Become इस पॉइंट को ये थोड़ा manufacturing hub करना in चाहूंगा future कि because जो हमारी गवर्नमेंट है, फॉरेन गवर्नमेंट कंट्रीज इज में जो आल्सो फॉरेन सपोर्टिंग दिस. कंट्रीज है गवर्नमेंट उसको ने कई उनको सारी इनवाइट पॉलिसीज करना ऐसे पड़ेगा क्रिएट की इंडिया हैं. में, उनके इंडस्ट्रीज को स्टेब्लिश करने के लिए. जैसे कि पता है कि हमारे पास यंग टैलेंट है, इंजीनियर्स है जो कि फॉरेन कंट्रीज में वर्क कर रहे हैं, ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं. डेवलप करने मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड करना We have a lot of चाहूंगा. हमने अभी talent. देखा है To add one more अगर point, हमारे let पास me speak. यूथ है, साथ ही साथ हमने बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम भी लेके आए हैं, जो स्किल इंडिया के जैसे, जो हमारी कंट्री के जो यूथ है उनको स्किल करता है, साथ ही साथ उनको एम्प्लॉयमेंट की मतलब कैपेबिलिटी जो प्रोवाइड करता है, उसमें डिफरेंट हम लोग अभी प्रोग्रेस कर रहे हैं. साथ ही हमने रिसर्च और बाकी फील्ड में भी काफी इन्वेस्ट किया है, जो डेफिनेटली हम लोग को ज्यादा स्किलफुल बना सकता है, जो हमारे फ्यूचर के लिए I मैन्युफैक्चरिंग. agree with you. Like we are signing free trade agreement with many of the countries like Australia, and we are in talk with the United Kingdom, and we have already signed many free trade agreement with the other country also. So this will create a new market for our company to manufacture and then supply, so that our export will increase and we can become the manufacturing hub.
And India is सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए जैसे कि यूनिकॉर्न इंडिया प्रोजेक्ट जो भी रिसेंटली अभी जो डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस ऐसे हो सकते हैं कि इसके अंदर एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके चैलेंजेस हो सकता है, एक ट्रांसपोर्टेशन के अंदर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, और एक चैलेंजेस ये हो सकता है कि स्किल्ड लेबर जो है उसकी काफी कमी है इंडिया के अंदर, तो स्किल्ड लेबर को इम्प्रूव करना पड़ेगा, रेगुलेटिव एनवायरनमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। We need to educate our youth and upskill our youth. और दूसरा चैलेंज ये भी हो सकता है कि हमको थोड़े छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज बनाने पड़ेंगे जो कि बड़ी इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल, और इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट भी करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि जैसा हमें पता है कि अगर गवर्नमेंट चीजें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं करना होगा तो हमें डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा। इंडिया में आज इतने ज्यादा लॉस बने हुए हैं, अगर एक छोटी सी इंडस्ट्री भी मेरे को लगानी होती है तो मुझे छोटी सी इंडस्ट्री लगाने के लिए भी मेरे पास इतने ज्यादा परमिशंस लेने पड़ते हैं, इतने ज्यादा लॉस बने हुए इंडिया में कि सेंटर से परमिशन, इसके बाद स्टेट से परमिशन, देन फिर लोकल अथॉरिटीज है जिनसे मुझे परमिशन लेने की जरूरत है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो ये पॉइंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि जितने सारे टैक्सेस लगते हैं और फिर उसके इतनी ज्यादा अगर मेरे को परमिशन लेनी पड़ती है तो एक बिजनेसमैन सिर्फ इन्हीं चीजों में उलझ के रह जाता है एंड ही इज नॉट एबल टू डू द बिजनेस। सो आई गेस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज द बेस्ट स्मॉल इंडस्ट्री जो छोटे बिजनेस है, लोकल इंडस्ट्रीज है, उनको आगे बढ़ने का चांस मिलना चाहिए ताकि लार्ज स्केल पर प्रोडक्ट्स का। एक पॉइंट ये भी ऐड करना चाहूंगा मैं कि जो प्रमोट कर रही है स्टार्टअप इंडिया के तहत डिस्ट्रीब्यूट भी कर सके। अगर हम देखें कि हमारे इंडिया का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो बहुत वीक है, क्योंकि अगर हम चाइना कंपनी में देखें हमारे फ्रेट कॉरिडोर है उनकी एवरेज स्पेसिफिक 25 किलोमीटर पर आवर है कंपेयर टू चाइना जिसकी सिर्फ 45 किलोमीटर पर आवर है। तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है रेलवे का वो भी काफी अभी वीक है, उसमें इन्वेस्टमेंट काफी इन्वेस्ट करना पड़ेगा हमें। इसमें हमें टेक्नोलॉजी को एडवांस करने के लिए क्या करना होगा, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में हमें वो जो मोर मनी इंटेलिजेंस का यूज करके हम लोग कैसे इफिशिएंट कर सकते हैं अपने सप्लाई चेन को। जैसे मेरे फ्रेंड ने कहा कि हमारा चाइना और इंडिया को कंपेयर करें तो चाइना का जो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है वो बहुत इफिशिएंट है, तो वी कैन यूज एआई और एमएल जिससे कि हम इंडस्ट्री 4.0 को कंसीडर कर सकते हैं और उसको यूज करके हम लोग इस चीज को एफिशिएंट वे में यूज कर सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में भी फंड्स को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। जैसे कि अभी इकोनॉमी का 0.7% हम दे पा रहे हैं, उसको 3% तक हमको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। जी, मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि लैक ऑफ फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर apart from this infrastructure I want to add one thing also, that financial infrastructure is very important, क्योंकि आज अगर हम देखने के लिए जाते हैं तो लोन एक अगर किसी को भी बिजनेस शुरू करना है तो उसको लोन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, तो लोन लेने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है आज एक छोटे बिजनेसमैन को। तो बिजनेसमैन के लिए फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप करना, दिस इज आल्सो बिग चैलेंज आई गेस इन द मेल ऑफ आई वांट टू गिव वन मोर एग्जांपल यहां पे देना चाहता हूं। पहले हम लोग क्या थे, मनी आप देखेंगे बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। आल्सो वी इंपोर्ट raw items for the medicine, but due to COVID and other geopolitical region, we can see the growth in our defense manufacturing and electronics, also medicine. So we can see एक हम लोग झलक देख सकते हैं how India can become the manufacturing hub, like we are utilizing the resources and the opportunity, and I think India is on the right track. So one more अभी रिसेंटली जो सेमीकॉन इंडिया प्रोजेक्ट का जो इनिशिएटिव हुआ था, अभी जैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज को हम ग्रूम कर सकते हैं उसके थ्रू। सेमीकन इंडिया प्रोजेक्ट जो अभी लॉन्च हुआ है। अगर हम अभी एक्सटेंपोर की बात करते हैं, जैसे India made first indigenous nuclear power reactor in Gujarat. So this is a huge achievement in the process of becoming the hub in manufacturing hub. And one more point to add to that, recently that we had the G20 presidency in India, and that represents a change in the फैसिलिटी डेवलप करना चाह रहे थे, तो नीति आयोग सेड कि वी डोंट हैव स्किल्ड मैन पावर। तो स्किल्ड मैन पावर के लिए मेरे फ्रेंड ने पहले कहा कि ये एक पॉइंट कंसीडर करना चाहिए, लेकिन स्किल्ड मैन पावर क्या है ना कि वी आर वेरी मच लैगिंग इन दैट। लाइक
सेमीकंडक्टर कंपनी लगाने के लिए, आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इसी सेक्टर के बारे में बता रहा हूँ। देयर आर मोर सेक्टर आल्सो लाइक फार्मा इज देयर और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इज देयर। तो फार्मा में तो वी आर इंडिपेंडेंटली हैंडलिंग दैट सिचुएशन कि हम फार्मा में बहुत आगे हैं मैन्युफैक्चरिंग में, वी आर लैगिंग इन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। तो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में जैसे नीति आयोग ने कहा था कि हमारे पास स्किल्ड मैन पावर, जो प्लांट को ऑपरेशन करने के लिए जो मैन पावर चाहिए वो हमारे पास सफिशिएंट नहीं है। दैट्स व्हाई दैट प्लांट गॉट कैंसिल। कि गुजरात में हम लोग 40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं टू जनरेट अ चिप्स ओवर एयर इन इंडिया। तो स्किल मैन पावर के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कलेक्ट सम इंडिविजुअल फ्रॉम इंडिया एंड देन सेंड इट टू डिफरेंट कंट्री एंड देन ट्रेन देयर so that we can get the knowledge of what latest मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड कर एनर्जी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। आई वांट टू एक और पॉजिटिव मैनर में चाहूंगा कि अगर आप देखेंगे हमारी कंट्री का जो अभी करंट है जो एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ मनी, अगर आप फॉरेन से हमारी कंट्री से सामान खरीदेंगे तो आपको बहुत सस्ता पड़ता है। आप देखेंगे $1 के बदले आपको 60 रुपए का या फिर 90 रुपए का सामान भी मिल जाता है। तो डेफिनेटली फॉरेन कंट्री वाले हमारी कंट्री से खरीदना ज्यादा प्रीफर करते हैं। सेम चाइना से भी इसीलिए प्रीफर करते हैं अभी के टाइम में, क्योंकि वहां से जो उसने अपनी मनी को होते है डिमोनेटेड करके रखा हुआ है। तो हमारी कंट्री के लिए अच्छा स्कोप है, क्योंकि उनको एक सस्ते में सामान मिलेगा तो डेफिनेटली वो परचेज करेंगे। आई एग्री विद पॉलिसी बना रही है, लेकिन उन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। अगर हम देखें गवर्नमेंट पॉलिसी तो बना रही है, लेकिन उनके इम्प्लीमेंटेशन हो पा रहे नहीं हो पा रहे, ये भी हमें देखना चाहिए। अगर हम देखें जब फ्रेट कॉरिडोर है वो प्रोजेक्ट अभी तक 5 बार डिले हो चुका है, मतलब कहने के इम्प्लीमेंटेशन में कहीं दिक्कत आ रही पॉलिसीज के। गवर्नमेंट पॉलिसी तो बना रही है, वो कहीं ना कहीं वो ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। तो वो भी एक हर्डल बन सकता है। ऐड करना चाहूंगा कि इंडिया के पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। अगर इंडिया को ग्लोबल हब बनना है तो इंडिया के पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। जैसे अगर हम आज देखते हैं तो इंडिया की जो मीडियन एज, जो कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं कि इंडिया बहुत ज्यादा यूथ कंट्री है, तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि मीडियन एज इंडिया का 29 के अराउंड है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अगर 10 साल का टाइम है हमारे पास, अगर 10 साल बाद ये मीडियन एज जो हमारी वो 38-39 के आसपास हो जाती है, देन फिर इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि उतना हमारे पास उतना यूथफुल पीपल नहीं रहेंगे। तो इंडिया को जो कुछ भी करना है आज भी करना होगा, आज स्टेप्स लेने होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देयर आर मेनी लॉट ऑफ यूथ पॉपुलेशन इन एरियाज लाइक यूपी, बिहार एंड बंगाल, but due to political reason or maybe some other reason, government is not focusing on that region, and they bring the foreign companies in their state which they are in power, like Gujarat or Maharashtra. So proper utilization of the population is also very important. We can also invite other foreign companies to invest in India, like Micron has recently come up in Gujarat to set up his plant to manufacture the chips. So we can invite other companies. There are many states in which investments are not coming, like in Northeast, in Bihar, Bengal, companies are not coming because of the political reason. So these are the challenges government have to address. We have to. There should be the development. मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि अभी जैसे हमारे जो एक्सटर्नल, we are not discussing about politics. No, not politics. Challenges. Now, before I conclude without I give a chance, just do remember the topic was not that you are how you can overcome the challenges. That is where the digression has already started since so long. You guys started digressing from the topic that how can we meet up the challenges. Was that the topic? It was not the topic, right? So there is a digression which goes on in a group discussion which will not be there. So conclusion, who has to conclude? Yes, ma'am. Dheeraj, go ahead. Yes, ma'am. So we have a very fruitful discussion. Just like a coin, every point have two sides. तो इसके भी दो साइड थे कि इंडिया बन सकता है नहीं बन सकता। हमने दोनों पॉइंट पे अच्छे से वो डिस्कशन करा। अगर हम इसके पॉजिटिव साइड देखें तो हमने देखा कि इंडिया के पास यूथ पावर है, जिसको वो अगर वो अच्छे से यूटिलाइज करे, चैनलाइज करे, तो उससे इंडिया ग्लोबल पावर बन सकता है। और हमने अभी देखा कि इंडिया में बहुत सारे लिथियम रिजर्व मिले हैं, और इससे हमारा एफडीआई भी इसके लोगों और गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज में जो लॉन्च करी, जैसे स्किल इंडिया प्रोग्राम है, कौशल विकास योजना है, और डिजिटल इंडिया है, मेक इन इंडिया, बहुत सारी पॉलिसीज भी हैं जो कि इंडिया को हेल्प कर सकते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए। अगर हम इसकी नेगेटिव साइड देखें कि जो अभी इंडिया में जो यूथ है वो स्किल नहीं है, तो हमें उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। और हालांकि गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसी ला तो रही है, लेकिन इम्प्लीमेंट हो पा रही है नहीं हो पा रही है, इसके लिए भी कोई
पॉलिसी, वो बॉडी नहीं जो उस चीज को देख सके कि जो पॉलिसी आई है वो ढंग से इम्प्लीमेंट हो पाई है या नहीं हो पाई है। और हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा मोर फोकस करना चाहिए, मोर फोकस करना पड़ेगा, ताकि अगर हमें ग्लोबल में मैन्युफैक्चरर बनना है तो। थैंक यू। Okay. Now see, you guys have committed already various mistakes, and someone who felt that he has given the star point. Anyone who felt it out? Anyone who felt that I have given the star point? Yes, ma'am. Who feels it out? Good points means the best of all. If मैम someone has मैंने to एक count- फ्री मैंने Yes, एक ma'am. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात किया था, लाइक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इजी हो जाए ताकि मार्केट ओपन हो इंडिया के लिए, और जो भी इंडिया मैन्युफैक्चर करे वो ये तो हम लोग आसान। आयुष क्या टॉपिक क्या था? इंडिया रेडी है कि नहीं रेडी है, कि मैंने कैसे रेडी करवाना है? टॉपिक तो तीसरा बना दिया। यस एग्रीमेंट को चेक करना, पॉलिसीज को रेगुलेट करो। टॉपिक कहाँ चला गया? टॉपिक चला गया कि चलो जी हम बनाते हैं इंडिया को। अगर तो टॉपिक दिया होता ना, हाउ कैन वी मेक इंडिया रेडी फॉर दिस, देन योर आंसर्स वर गुड। अब बताओ मुझे, अब किसका पॉइंट अच्छा था? मैम Anyone एक who मैंने felt it टॉपिक मैम एक टॉपिक मैंने ये दिया था, यानी कि पॉइंट कि इंडिया के अंदर वास्ट कंज्यूमर मार्केट है, जिससे ये इंडिया काफी मैन्युफैक्चरिंग का फ्यूचर बन सकता है। That was fine. Okay, next. That was not a star Yes, point. मैंने एक मैम दिया था कि मैम कि इंडिया एक्सचेंज में ऑफ मनी में, एक्सचेंज ऑफ मनी में जो हमारी कंट्री होती है वो $1 के कंपैरिजन में काफी इक्विवेलेंट होता है अदर कंट्रीज के लिए। जैसे $1 में आपको 60 रुपए का सामान मिल जाएगा, 90 रुपए का सामान। इंडिया तो को क्यों नुकसान करना है? मैम पर वो एक प्रॉफिट भी है फॉरेन कंट्रीज के लिए, अगर वो चाहते हैं तो उनके लिए। फॉरेन कंट्रीज एक पॉइंट में बताती हूँ, चलो वो मैं हर एक पे डिस्कस करूंगी। और कोई जिसको लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छा दिया, देन आई विल रिवील द नेम। जैसे मैंने इसी पॉजिटिव में ये पॉइंट कहा था कि इंडिया के पास बहुत यूथ पावर है, अगर उसको ढंग से चैनलाइज करे तो इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। और गवर्नमेंट आयुष ने अभी क्या बोला है कि बन सकता है, यही तो मैं बोल रही हूँ। जीडी में प्रॉब्लम कहाँ पे लाई करती है? तुम लोग जो डाइग्रेस होके अपना ही टॉपिक शुरू कर देते हो। टॉपिक स्टार्ट कर दिया कि हम इंडिया को कैसे बनाएंगे, यूथ को कैसे चैलेंज किया जाए, पॉलिसी को रेगुलेट करने के लिए बॉडी रखी जाए। ऑल दीज थिंग्स आर इन एन आउटलाइन कि आप इंडिया को एक अच्छा मैन्युफैक्चरिंग हब कैसे बना सकते हो। जबकि टॉपिक था क्या इंडिया रेडी है या नहीं है, बस एक सिंपल चीज पूछी थी मैंने। और ये चीजें जो बोलनी थी कंक्लूजन में बोलनी थी। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, एवरी वन ऑफ यू। द बेस्ट स्टार पॉइंट वाज, कोई रह गया जिसको लगता है कि मैंने दिया है? अजय, प्रमोद, विकास, अनिकेत। मैम एक चाइना +1 पॉलिसी वाला पॉइंट आया था, वो हो सकता है ना मैम? तो मुझे बताओ, अपना ही लग रहा है कि किसी और का लग रहा है कि मैंने नहीं अच्छा किसी किया और था? का, वो किसी और मैंने का? भी सोचा था पर वो बोल दिया था मेरे से पहले। अच्छा, किसी को लास्ट, मैं बिफोर आई रिवील द नेम, किसी को लग रहा है कि मैंने आज बहुत अच्छा किया? कि सबको यही लग रहा है मैंने बहुत बुरा किया? वी गॉट डाइग्रेस फ्रॉम द टॉपिक। किसको लग रहा है? जैसे हम बोल सकते हैं कि जैसे गवर्नमेंट ने भी पॉलिसी लॉन्च की है कि ये इंडिया यूरोप और ये वाली जो वो करिए पॉलिसी लॉन्च की है G20 में, उससे इंडिया बन सकता है। कि इसमें पूछा ना कैन इंडिया बिकम, तो बन सकता है कि अगर वो इंडिया चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करे तो उससे बाद एक हमारा अल्टरनेटिव ऑप्शन होगा जिससे हम मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकें। मैं बताती हूँ सबसे अच्छा पॉइंट जो मुझे लगा। तो वन पॉइंटर जो बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द नोटबुक पे है, अनिकेत का पॉइंट। इट वाज वेरी नाइस एट द वेरी स्टार्ट ओनली व्हेन ही मेंशनड कि जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम डिपॉजिटेड, एंड वी जस्ट मेंशनड। बस अनिकेत ने क्या एडवांटेज लिया, उस दिन हमने ईवी बैटरीज का डिस्कस किया, ईवी व्हीकल्स का डिस्कस किया था, राइट, ऑन सैटरडे। दैट इज अ स्मार्ट वे ऑफ टेकिंग दैट पॉइंट इनटू दिस ग्रुप डिस्कशन, एंड नो वन एवर थॉट, है ना, ईवी व्हीकल्स। पर अनिकेत उसको ईवी टारगेट मत करो, ये नहीं लगना चाहिए कि हाँ वही पॉइंट उठा के यहाँ पे बोल दिया। ठीक है, लिथियम बैटरीज एंड ऑल दैट, मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छी हो रही है, दैट इज फाइन। दिस इज अ वे यू हैव टू, व्हेन आई से ना कॉपी में एट द एंड पॉइंट नोट करो, ये वाले पॉइंट्स कहीं और काम आएंगे। यूथ वाली चीजें हमने डिस्कस की हुई है, वो यहाँ पे काम आएंगी। Every time there's an exchange of comments in different topics. That is what you have to go for a smart trick, right? Now, before I go for each one of you with the pointers, किसकी क्या कमी थी, क्या अच्छा पॉइंट था, let me start with that. First आ जाता है कि India was ready, India is ready, और India is not ready. If we talk about India is ready. I want to interrupt you, ma'am. The topic is, can India become हाँ a manufacturing hub? हाँ, Like ready, ना ready और become में कोई अंतर है क्या मैम? रेडी मीन टू से बिकम कर सकता है, बन सकता है या नहीं बन सकता। रेडी मैंने बोल दिया, रेडी है, अभी बन सकता है या नहीं बन सकता, सेम वे। इट इज नॉट दैट ओनली डिफरेंस, ठीक है। आई वांट टू काउंट इट आउट इन द सेम थिंग कि आप बन सकते हो या नहीं बन सकते हो।
जैसे अनिकेत ने बोल दिया कि हमारे पास बहुत अच्छा वो है, जम्मू एंड कश्मीर, हमारी स्टेट्स के पास बहुत अच्छी पॉलिसीज है, बहुत अच्छा लिथियम का आयन का वो है, यू कैन से हम इंपोर्ट बहुत अच्छा कर सकते हैं, एक्सपोर्ट बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली वी कैन बी, अगर हमारे पास यहीं पे बहुत अच्छा होगा तो वी कैन ग्रो इन दैट डायरेक्शन, राइट। अब सुनो ध्यान से, जब मैं बोल रही हूँ तुम्हें, जब टॉपिक की बात आती है, जैसे अपनी ईवी व्हीकल्स का, तभी मैंने ये वाला टॉपिक उठाया था। व्हाट इज थिंग यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन, पहले लेबर लॉस पे, जैसे तुमने अलग अलग बताया। सत्यम का एक जो नेगेटिव था, सत्यम आपने ना स्टार्ट कर दिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है, बिजनेस टैक्सेस ट्रैप हो रहे हैं, यू टॉल्ड अबाउट दिस पॉइंट, राइट। इसमें सबसे पहले ये पॉइंट के आने की बजाय क्या आना चाहिए था, जो फॉरेन मार्केट वाले लोग हैं, सपोज करो फॉरेन मार्केट इन्वेस्ट करेगी ना हमारे में, अभी आईफोन के लिए बाहर यूक्रेन और रशिया का कंफ्लिक्ट हुआ, उससे क्या फायदा किसको हो रहा है, इंडिया को। चाइना के रिलेशंस खराब हुए किसी के साथ, फायदा किसको हो रहा है, इंडिया को। क्यों? क्योंकि लोगों ने इंडिया के म्यूचुअल रिलेशंस पे ट्रस्ट करना शुरू कर दिया। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि फॉरेन के लोगों को भी डर लगता है इंडिया में, क्योंकि लॉज इंडिया के सबको पता है कितने ज्यादा, यू कैन से अनस्टेबल लॉज, राइट, टेक्स लॉन्ग ऑफ टाइम फॉर प्रोसीडिंग्स। तो बेटर देन सेइंग इट आउट कि हमें खुद बनाने में टाइम लगता है, द फॉरेन कंपनीज दे फियर इन इन्वेस्टिंग इन इंडिया because of poor infrastructure which is being present in India. Second is the labor laws. They are not good in India. The judiciary system is not of that impact. किसी को भी कोई पैसा लगाना है, तुम लोग फंड्स लेते हो, तुम शेयर्स खरीदते हो, तुम किस पे लगाते हो? जहाँ पे सरकार पूरा करती है ना, एसबीआई के शेयर्स खरीद लो। क्यों? पता है डूबेगी नहीं, डूबेगी तो सरकार बचा लेगी, क्योंकि सरकार का बैंक है। सोचते नहीं ये चीजें, क्या मतलब आता है आपको? ये भी पता है कि अगर मैंने कहीं और बैंक में लगा दिया, कल को कोई लॉ या कोई सपोज करो तुम कोर्ट के चक्रों में पड़ जाते हो, यू नो दैट कोर्ट की प्रोसीडिंग्स बहुत लंबी है। इंडिया की प्रोसीडिंग जब तक बारी आएगी, 2-3 साल तक बारी आएगी तुम्हें प्रॉपर रेगुलेशन सॉल्व करने की, तब तक पर्सन खुद ही क्विट कर देता है कि छोड़ दो। So this is what the mindset will be of foreign countries also before they invest in India, and that was a good point. Rather than saying about your own country's progression, तुम तो सत्यम अपनी कंट्री के प्रोग्रेशन पे ही खराब कर रहे थे। मैम जो मैंने एफटीए का बात किया था, I'll come to you. मैं जो पॉइंट की डिस्कस कर रही हूँ, मैं सबके पॉइंट्स पे आऊंगी, जिसने क्या क्या बोला है। हैव पेशेंस, ओके। अब नेक्स्ट क्या आ रहा था, अगर आपने, मैंने बोला लैक, वही बोल दिया, स्किल्ड लेबर का फोर्स का लैक हो गया। फाइनेंसेस, एक धीरज ने बोला, मुझे लगता है, धीरज मुझे लगने पे नहीं है कि इंडिया टॉप 5 में आ सकती है, इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है या कुछ है। सेंटर के पास पैसा इतना भी नहीं होगा, सरकारों के पास इतना पैसा भी नहीं है, दे हैव अ करप्शन मीडियम चल रहा है। अगर होता तो हर एक पर्सन पेंशन के साथ बैठा होता आज। देयर आर सम रूल्स, कई बार बोलते हैं ना इंडिया के पास पैसा, फंडिंग खत्म है, ये चीजें तो मैं नहीं बोल सकती। मैं तो बोलूं इंडिया के पास तो बहुत पैसा, मुझे दे ही देगा। आई कैन नॉट गो ऑन सम बिलीव्स ऑफ माय ओन, आई कैन नॉट से द स्टेटमेंट इन अ ग्रुप डिस्कशन। मैं जैसे इंडिया अभी अभी 7 से 5th पोजीशन पे आया कि टोटल उसकी जीडीपी में, वर्ल्ड वाइड देखें उसकी इकोनॉमी में टॉप 5 में आया 7 से, तो मुझे, मैंने इस बेस पे कहा था कि उसमें ग्रो कर रहा है। इट इज नॉट, मैं बोलूँ कि 5th में आ गया, कहाँ में से आया, किस किस को छोड़ा है उसने पीछे भी? तो देखो कंट्रीज इसको ये कर रहा है, कम्पीट कर किसको कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया को कर रहा है, अमेरिका को कर रहा नहीं कर रहा ना अभी। नहीं, हम डेवलप्ड भी नहीं बन पाए अभी। सो वी कैन नॉट से, जब तक हम डेवलप नहीं बनते, वी कैन नॉट से वी हैव अ ह्यूज फंडिंग। हमारा हर पर्सन पावर्टी में, इंडिया सबसे ज्यादा ग्लोबली, रैंक उसका 151 क्रॉस हो चुका है। इट इज अ पावर्टी इंडेक्स विच इज गोइंग ऑन राइट नाउ। हमारा पावर्टी इंडेक्स में 151st रैंक के पास आ चुका है। तो ऑब्वियसली वी आर इन द रेशियो जहां पे हम पुअर कंट्रीज की तरफ भी पावर्टी लाइन ज्यादा ग्रो कर रही है हमारी, वो भी आ जाता है। तो वी कैन नॉट ग्रो इन दैट टर्म्स। क्लियर हुई ये चीज? तो उससे मत करना। और वर्स वे ऑफ सेइंग, मुझे लगता है, मेरी सपोजिशन ये है, ग्रुप डिस्कशन में ये लाइंस नहीं बोलनी है। इट इज अकॉर्डिंग टू context, according to the statement, according to the rise we have achieved, according to report, okay ma'am, according to report, according to the news which we have seen। ऐसा कुछ आपने लेबल करना है, खुद से मत लेबल करो, नेगेटिव पे मत जाओ, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका, जब मैंने बोला लॉजिस्टिक सेक्टर की किसी ने बात की थी, आई थिंक हु हैज गिवन द नेम ऑफ लॉजिस्टिक सेक्टर, इट वाज गिवन बाय प्रमोद, है ना, प्रमोद ने दिया था चाइना का लॉजिस्टिक सेक्टर, देन एआई इफेक्ट। इट वाज अ गुड पॉइंट प्रमोद फ्रॉम योर साइड, जब आपने पूरा कंपैरिजन करके बताया था ना। बस उसका मेन प्रमोद द नेगेटिव पार्ट वाज कि जैसे आपने कंपेयर करना शुरू कर दिया, ठीक है। व्हेन यू स्टार्टेड इन कंपेयरिंग ना, चाइना हैज बीन लीडिंग इन द कंपेयरिंग दिस लॉजिस्टिक सेक्टर एंड इंडिया व्हाई कैन नॉट बी। या तो उसको उस स्टेटमेंट की तरफ ले जाओ कि इंडिया नहीं हो सकता लॉजिस्टिक सेक्टर में, क्योंकि अभी तक हमने देखा है ना, तो यहाँ पे सिंगल विंडो क्लियरेंस फैसिलिटी है, तो लॉजिस्टिक सेक्टर हमारा अनस्टेबल चल रहा है, ग्रो नहीं हो पा रहा। हम फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि लॉजिस्टिक्स ग्रो करेगा कि नहीं करेगा। वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, इधर गो इन दैट रन, ठीक है। मतलब अपने पॉइंट को एक्सप्लेन करते करते आपने इंडिया की डायमेंशन को छोड़ दिया था।
वो मुझे नहीं ठीक लगा। आई थिंक मैम हमको आई थिंक वी शुड कंसिडर द पॉजिटिव पॉइंट ऑफ इंडिया कि क्या क्या पॉजिटिव है जिससे वो बन सकता है। हमको ये नहीं कंसिडर करना था कि हमको कैसे करना है। Right now I'm saying you out about the only negatives. I'll come to the positives also. अभी सिर्फ मैं नेगेटिव्स डिस्कस कर रही हूँ, जिसने जो नेगेटिव बोला और पॉइंट क्या था। ठीक है, आपका पॉइंट आई हैव नोटेड इट आउट, जिसमें आपने बोला है ना अबाउट चाइना लॉजिस्टिक्स AI एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग इट आउट। आई टोल्ड यू वन थिंग, you have just to target it out कि क्या इंडिया आगे बन सकता है या नहीं बन सकता। So the way of speaking it out, it would be that compared to it, India has progressed a lot. We have gone to the artificial intelligence. We have seen the scientists progressing and all that. एक और पॉइंट किसने दिया था? I think इंजीनियर्स बहुत अच्छे हैं यहाँ के, साइंटिस्ट बहुत अच्छे हैं, वेरी यंग टैलेंट, प्रमोद का ही था शायद, यंग टैलेंट इंजीनियर्स आर देयर इन इंडिया, यंग टैलेंटेड यू कैन से यूथ इज वेरी मच देयर इन इंडिया। इसको लिंक करके साथ में एग्जाम्पल कोट करना था। आपने क्या किया, पहले वो पॉइंट दे दिया टैलेंट के बारे में, उसके कुछ टाइम बाद आपने वो पॉइंट दिया। यू शुड हैव लिंक्ड द पॉइंटर्स, वो नेगेटिव था। बिकॉज व्हेन यू से वन स्टेटमेंट, इफ यू डू नॉट प्रूव इट आउट, वो आपका बैरियर बन जाता है। मैंने ये पॉइंट नहीं नोट करना था, अगर मैंने इफ आई एम नॉट नोटिंग अ सिंगल इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स, मैं आपका पॉइंट नोट ना करती, ठीक है। बट योर पॉइंट कुड बी गुड देन बेटर देन अनिकेत इफ यू हैव नोटेड इट आउट विद द एग्जांपल। कोट करके समझा दो वो चीज को, इट गोज गुड। You could say it out. We have seen India going massively, progressing a lot compared to the youth. You can say young generation. We have the talented of the engineers who are growing, progressing everywhere, and that is why India has been a part of Future Trust. We are able to compete with China also. Now, at artificial intelligence, वही point बहुत अच्छा बना था। बस कमी ये थी, आपने different में बोला, पहले आधा बोल दिया फिर आधा बोला। That was only mistake. You did. ठीक है। उसके बाद आ जाता है नेगेटिव में, मैं सिर्फ बोल रही हूँ हाई इनपुट कॉस्ट बोल सकते थे। इनपुट कॉस्ट अगर हम मटेरियल मंगवा भी रहे हैं, इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होती है। इसकी वजह से भी इंडिया पे पास अभी फंडिंग फाइनेंसेस का कुछ इतना बहुत ज्यादा नहीं है। पॉवर्टी लाइन बहुत ज्यादा ग्रो कर चुकी है, वी कैन नॉट स्पेंड सो मच। अगर हमें अकेला इंडिविजुअल ग्रोइंग बनना है तो ऑब्वियसली हमें इम्पोर्ट कम करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट ज्यादा करना पड़ेगा। दैट इज वाई ओनली वी कैन बिकम, ठीक है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट वाज ऑल। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि फॉरेन कंट्रीज को क्या प्रॉब्लम है, लॉस से, ब्लैक मार्केट, करप्शन जो इंडिया में एग्जिस्ट करती है, प्लस यू विल से द पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर फाइनेंशियल कॉल्स। दैट इज व्हाई दे आर नॉट एबल टू ट्रस्ट इंडिया फॉर द, यू कैन से, इन्वेस्टमेंट। Though some companies, because of the mutual trust which are being gained by Modi, has been making relations with other countries, it is going also. ये हो गए हमारे नेगेटिव्स में। पॉजिटिव क्या क्या है, क्यों इंडिया बन सकती है? Now we have to target in that case. सबसे अच्छा है कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है इस कंसेप्ट को। If our government is in that run, all the people are working in that same goal, तो उससे हमारा बेनिफिट होगा, ठीक है। Obviously, if government has an idea, Make in India की कैंपेन फ्लैगशिप चल रही है, so every one person is getting awareness of it, and we are being aware, इसलिए इंडिया बन सकती है, because every youth into it. अगर हम कोई चीज खरीदना भी चाहते हैं, we think before buying। हमने क्या किया था बीच में, I think Redmi and all that mobiles who were I think from China, the people started quitting it out like anything, that we do not want to, we only want to buy those things which are made in India। अगर मैं सब में अवेयरनेस गिरा दूंगी, always buy the products which are made in India, हमारी इकोनॉमी बूम करनी शुरू कर देगी ना। तो ऑब्वियसली वो करनी शुरू करने से पहले है कि हम अवेयर हो चुके हैं। नाउ ऑल ऑफ यू आर बीइंग अवेयर, मेड इन इंडिया इज अ कैंपेन व्हिच इज बीइंग प्रमोटेड एंड वी हैव टू फॉलो इट आउट। क्लियर हो गया पहली चीज, क्यों इंडिया है। सेकंड आ जाता है इंडिया में क्या चीज बहुत अच्छी है। एक तो ग्लोबल मार्केट के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। तो हमने डॉलर, आई थिंक 10 ट्रिलियन की, आई एम नॉट श्योर अबाउट द, यू कैन से $1 ट्रिलियन टू $20 ट्रिलियन, ये कोई एक पॉलिसी है। 2047 तक हम टारगेट कर रहे हैं। ये आप प्लीज एक बार रीड कर लेना कि कितना फिगर्स है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द फिगर्स, इट इज $1 and $20 by 2047, इट इज समथिंग लाइक दैट। उसमें इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर चुका है ऑलरेडी, इतना कुछ हो चुकी है, मतलब इतना हमें एक रिटर्न एक्सपेक्टेड है। अगर आपने इफ आई से यू अबाउट 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देखे हैं, इफ यू रेड अबाउट 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसमें गोल्स में देखना, जैसे हम एक रख लेते हैं 2030 तक हमने नेट, 2070 तक हमने नेट जीरो जाना है, ये जाना है, गोल्स माइंडसेट पे हमारे वो प्रॉपर रेडी है। उस तरह से इंडिया ने चैनलाइज कर दिया कि 2030 तक इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगी ग्लोबली। दैट वाज द यूथ आइडिया ऑफ दिस। उसी तरह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अब इंक्रीज करने के लिए चल रहा है। वी हैव ऑलरेडी एक्सपैंडेड इट आउट लाइक एनीथिंग। लेबर इंडिया की बहुत स्ट्रांग है। अगर आप लेबर स्किल्स में जाओगे, ये है, लेबर लॉज अच्छे नहीं है इंडिया के, पर लेबर लोग जो हैं, जो काम करते हैं, जिस तरह से प्रमोद ने बोला था, इंजीनियर्स वगैरह जो भी हैं, उनका स्किल सेट, माइंडसेट, नॉलेज बहुत ज्यादा वाइडन है देन अदर कंट्रीज प्रोग्रेशन।
अगर सारे मिलके काम करते तो ऑब्वियसली कैन बिकम। और मैम चीपर भी है कंपैरेटिवली चाइना के, चीप लेवल कॉस्ट। नहीं, चाइना से चीपर आई वोंट से कि चाइना की भी बहुत चीप है, वो मेन मार्केट में वैल्यू ही उसकी इसलिए थी। चाइना का सबसे ज्यादा नुकसान कैसे हुआ है, जब ये यूक्रेन रशिया कंफ्लिक्ट आ गई, चाइना ने स्टेटमेंट्स दी, उससे टारगेट होके इंडिया को बहुत फायदा हुआ है। मैम चाइना +1 स्ट्रेटेजी, इसको इस अपॉर्चुनिटी को इंडिया यूटिलाइज कर सकता है ना, ये एक पॉइंट बन सकता है ना मैम। जैसे आप बोल सकते थे दैट इको पॉलिटिकल मैट्रिक्स इन रशिया यूक्रेन conflict that has been you can say a turnover where India has actually become you can say a global market right now। अब जैसे अदरवाइज इंडिया को ना मिलता ये मेड इन चाइना, सॉरी आईफोन का भी नहीं मिलती शायद सप्लाई का, ठीक है, ये क्यों होना शुरू किया, ट्रस्ट डेवलप होना शुरू कर दिया, चाइना बाहर निकलना शुरू हो गया, पाकिस्तान से टेररिज्म, ये सारा ये हमें फायदा बहुत दे रहा है, इस वजह से हम बन पा रहे हैं, बढ़ पा रहे हैं। तो एटलीस्ट ये भी आपको एग्जांपल देना था कि अभी आईफोन 15 की लॉन्च हो गया, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स, आपको माना जाता है कि इंडिया के प्रोडक्ट्स की सर्वाइवल वारंटी एंड एवरीथिंग इज ऑल मच हायर, मतलब अगर आप उसकी कंपैशन एंड बैटरीज का देखोगे तो दैट इज वर्थ, आप उसको बना सकते हो कि दैट गिव्स अ लाइव एग्जांपल कि इंडिया ने अचीव किया है विद द मार्केट प्रोडक्शन, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन की है उन्होंने। So that is actually true कि इंडिया बन सकती है क्योंकि एक प्रोडक्ट लॉन्च कर चुका है, एक्चुअली अभी रिसेंट हुआ है ये, उसको भी तो एग्जांपल दे सकते थे, वो क्यों नहीं दिया, किसी ने भी नहीं दिया वो बोला। मैम वो एग्जांपल दे सकते हैं, मैंने दिया था मैम, आईफोन का नहीं दिया था, बाकी दूसरे चीज का दिया था, लाइक कोविड के बाद में हम लोग फार्मास्यूटिकल का सारा रॉ मटेरियल अपने देश में ही बनाना स्टार्ट कर दिए हैं मैम। हाँ, स्टार्ट कर पहले दिए, हम चाइना पे डिपेंडेंट थे। ये था कि इंडिया ने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने ऑलरेडी शुरू कर दिया, ऑलरेडी लीग में आ चुकी है, जब चीज ऑलरेडी लीग में है। हम जैसे आईफोन 15 लॉन्च हुआ है, इसका सिर्फ असेंबली इंडिया में हुई है, तो मैं ये यहाँ पे पॉइंट करना सही रहेगा, जैसे पार्ट चाइना में ही बने हैं, यहाँ पे सिर्फ असेंबल हुए हैं। इट इज जस्ट कि आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे भी कुछ पार्ट, जैसे अब कंपनीज ने इन्वेस्ट करना, ट्रस्ट करना, बेसिक इश्यूज है, अभी हमने एक लीग में छोटा पार्ट लेना शुरू कर दिया है। इट इज नॉट अबाउट बीइंग कि हम स्टार्टिंग को सारा वो प्रोजेक्ट हमें नहीं दे सकते, इन्वेस्टमेंट सारी नहीं देंगे, बट बीइंग अ पार्टिसिपेंट ऑफ इट। या प्रमोद, उसको मैम इस तरीके से भी बोल सकते हैं ना कि सम पार्ट इज प्रोवाइडेड बाय इसरो, कुछ आईफोन 15 में कुछ पार्ट इसरो ने प्रोवाइड किया है, तो वी कैन धीरे धीरे हम लोग अब सारे पार्ट्स अपने यहाँ बना के उसको दे सकते हैं और हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। So you can say proving the live examples, proving the skilled laborers and trust the मैम एक और पॉइंट, लाइक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी तो हो सकता है ना, लाइक वी आर अ स्टेबल डेमोक्रेसी, सो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन भी आता है। जैसे मैंने यही बोला ना कि जो लेबर लॉज वगैरह है, जो स्ट्रिंजेंट लेबर लॉज है हमारे, उस पे फिर वो भी आती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं होती है। ये दोनों साइड्स पे आपको काउंटर कर सकता है कोई, अगर तो काउंटर को संभालोगे गुड फॉर यू, अदरवाइज द पॉइंट इज गुड। ऑब्वियसली इंडिया जाना जाता है, डेमोक्रेसी है, एवरी पर्सन इज वर्किंग रियली हार्ड फॉर इट, यू कैन गो फॉर दैट कि हाँ पॉलिटिकल बहुत अच्छा है। क्लियर विद इट? अब कमिंग टू द इंडिविजुअल वंस, आई वुड से अनिकेत का पॉइंट अच्छा था about this what I told about Pratap मुझे लगता है top 5 that was the wrong point, wrong way of saying it out, wrong way of speaking, ठीक है, वो point गलत था। That was about promote young talent engineers, it was a good point, but that also I told you quote with the example, साथ में example के साथ quote कर देते, वहां पे सिर्फ गलती थी। Then it was whose name starts with R, रामाकांत। So रामाकांत का था एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जो रामाकांत एट द एंड बोला था वो जरूरी नहीं था। आई एम नॉट टॉकिंग राइट नाउ अबाउट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज व्हिच कैन ग्रो, राइट, वो यूजफुल नहीं था पॉइंट, उसको सिर्फ आगे तक बोलते, वो लाइन ना बोलते तो इट वाज बेटर। ठीक है, उसके बाद आयुष का था, इट वाज अबाउट आर्ग्यूमेंट्स एंड ओपन मार्केट, दैट वाज अ गुड वन। यतेंद्र का ट्रांसपोर्टिंग स्किल्ड लेबर, यतेंद्र गुड स्टार्ट एंड अ गुड पॉइंटर आल्सो, पर मैं कंपेयर कर रही हूँ बाकियों के साथ, बाकियों के पॉइंटर्स में अनिकेत का पॉइंट वे ऑफ कर गया, ठीक है, अदरवाइज योर पॉइंटर वाज गुड। Then it is your I think whose name Satyam का था, we need small industries, वही बोला small industries की जगह करना था better, foreign companies क्यों नहीं हमें invest कर पा रही है because of the lack of you can say the black market and everything which is being there in India। ठीक है, तो सत्यम सिर्फ अपनी ही कि small scale industries कैसे grow कर सकती है वो नहीं बोलना, foreign लोग क्यों नहीं invest कर पा रहे वो कर बोलना आपने, ठीक है। Then it is about अजय का था लोकल को चांस मिलना चाहिए, सेम अजय ने भी वही बोलना शुरू कर दिया, लोकल that is not required। धीरज का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, प्रमोद का दिस, हाँ एक आयुष का, आयुष द पॉइंट व्हिच यू टोल्ड ना दैट वाज नॉट इवन सैटिस्फैक्टरी, क्या बोला था ये, इंडिया की झलक देख सकते हैं इंडिया राइट नाउ, वेयर इज आयुष? यस, लाइक कोविड के बाद हम लोगों ने बहुत ज्यादा इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया था बहुत सारे चीजों का, लाइक डिफेंस इक्विपमेंट हो गया,
मैम, फार्मास्यूटिकल का रॉ मटेरियल हो गया। तो हम लोग मैम अभी एक देख सकते हैं ना कि लाइक वी आर मेकिंग द थिंग्स ऑन द राइट वे, और हम लोग आगे जा सकते हैं मैम, लाइक बन सकते हैं हाउ। Okay, then it is rest were fine. I don't think they were bad. Only आयुष का जो political rescue यूपी बिहार वहां पे जब चले गए, कौन सा पॉइंट आयुष का वो यस मैम, लाइक आयुष यस मैम, प्रॉपर यूटिलाइजेशन, मैंने वही बोला ना, चैलेंजेस मीट कैसे कर सकते हैं, वो पॉइंट नहीं था कि यूपी की जो लोग ओके हैं मैम, उनको प्रॉपर यूटिलाइज कर लो, गुजरात का आ गया, वो जरूरत कहाँ था? This should not be the pointer. Is India ready? Oh, sorry, is India going to become or not? It is not यस कैसे मैम, बना यस सकते हैं यस challenge और से नो, बच, यस मैम, ठीक है? यस और नो पे बात बाकी करना था। यस हाँ, और उसी तरह धीरज का ग्लोबल पावर जो है, लास्ट पॉइंटर वाज देयर ऑफ धीरज, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड मच अबाउट इट। धीरज, एक कंक्लूजन था आज का, अच्छा नहीं था कंक्लूजन, यस ठीक मैम, है? ऑलवेज मैं आई बीच से में भूल वन गया थिंग, था। यस मैम, इनफॉर्मल, हाँ भूल, पिछली बार भी गए थे, इंट्रोडक्शन में भूल गए थे, आज कंक्लूजन में भूल गए, यस मैम, है ना? तो एक इनफॉर्मल स्लैंग, वो धीरज, आई थिंक आई हैव टोल्ड यू इन एवरी जीडी मेनी टाइम्स। यस मैम, मेनी टाइम्स, राइट? और इनफॉर्मल स्लैंग में नोट करके बोलती हूँ, ये लाइन बोलते हो आप, खुद सोचो ना, यस मैम, मुझे लगता है, मैं ये बोलना चाहता हूँ, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है? तो मैम कुछ कुछ यस चीजें, मैम, हाँ ये मैम जो मैंने न्यूक्लियर पावर रिएक्टर का जो इंडिजीनियस एग्जांपल लिया था वो करेक्ट था मैम? see I have, if I have spoken about it then it is good, otherwise मुझे नहीं सुनाई, because otherwise you create a fish market and वो पॉइंट बीच में छुप जाता है। जैसे कई यस पॉइंट मैम, ऐसे स्टार्ट में वो एक आधा पर्सन का छुपा है, सॉरी फॉर दैट, यस मैम, बट आई ट्राई टू नोट जिस जिसका मैं बोल सकती हूँ, तो बिकॉज आई कुड नॉट यस हेयर मैम, योर पॉइंट एंड देयर वाज अ लेस पार्टिसिपेशन। अब लेस पार्टिसिपेशन भी आता है, एक बारी बोल देते हो ना, पॉज ले लिया करो, दूसरे पर्सन को पार्टिसिपेट करने दिया करो। तुम लोग क्या करते हो, साथ साथ नहीं, मैं नहीं अकेले बोलना, इट इज नॉट अबाउट ओवर पार्टिसिपेशन इन एनी जीडी, राइट? उस चीज का ध्यान रख लिया करो। मैम Clear? कैन आई स्पीक? Aniket, participate more. Pramod, participate more. Only your 2 pointers were there and that were good. लेकिन I want यस more मैम, participation. ठीक है? आयुष थोड़ा कम, ओवर एक्साइटेड नहीं होना, ठीक है? नहीं मैम, थोड़ा आज कम कम हो ही जाओ, किया था मैम, आज कम ही किया था। ये कम तो नहीं था, थोड़ा सर कम, मैम, ठीक है? या मैम जैसे कि हमने डे बिफोर यस्टरडे एक टॉपिक भी किया था कि योर फ्रेंड वांट्स टू स्टार्ट अ वेंचर आउट और हमको उसको सजेशन देना है, तो ये शायद सर ने लिया था हमारा, तो उसमें भी सर यही मैम यही हुआ कि हम लोग प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो मैम अगर स्टार्ट में ही किसी ने इंट्रोडक्शन दिया और वो वही पॉइंट को कन्वे कर रहा है, तो पूरा ग्रुप उसी उसी में मतलब इन्वेस्ट हो जाता है, तो उस चीज को कैसे क्या मतलब, इट जैसे इज लाइक व्हेन प्रॉब्लम्स को तो जिक्र करना ही पड़ेगा ना फर्स्ट, जैसे इट इज अबाउट नाउ एडिंग अ न्यू डायमेंशन। जब आप देखते हो ना, मैंने आपको पुराने जीडीज अगर आप गए थे, वी हैव जस्ट स्टार्टेड विद टू साइडेड, टू वेंचर्स में किया है। जब ऐसा आ जाता है ना, एक पर्सन, बाकी सारी एक ही जगह हो सकते हैं, यू कैन बिकम डिफरेंट बाय एडिंग, प्रमोट नाउ एडिंग अ न्यू डायमेंशन टू द टॉपिक, और आफ्टर मीटिंग द चैलेंजेस नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट दिस थिंग। मतलब आपको ये हेडर देना पड़ेगा प्रमोट। आप लोग सभी में प्रॉब्लम पता क्या चल रही है अभी ग्रुप डिस्कशन में, एवरीवन, आप लोग हेडर्स नहीं देते हो। Do you think you give headers? Do you say, oh, okay, I agree with Dheeraj now. Dheeraj, I would like to add a point. Simple बोलते रहते हो सारे जाने, I would like to add a point. I would like to add a dimension. You don't even know कि आपके ऊपर पर्सन ने बोला क्या है. This is a problem. And this would happen. अगर आप बोलो ना प्रमोद की सभी ने एक ही टॉपिक पे शुरू कर दिया, you participated out for this. अगर लगता है कि टॉपिक्स में अब कंटेंट में सिर्फ रेपिटेशन हो रहा है, उसको दो चीजों में विन आउट कर सकते हो, या तो अच्छा एग्जाम्पल देके relating it to normal life, or second time is when you can go in the direction, you can say, now I think my teammates, my friends, I would like to put this topic into a new dimension where we can resolve it out. आप उसको ऐड कर सकते, ठीक है? लेकिन वो बिल्कुल स्टार्ट में नहीं होना चाहिए, पहले 5 मिनट में नहीं, जब लगे कि टॉपिक में रेपिटेशन है, एग्जाम्पल्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, आपने एग्जाम्पल भी दे दिया नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड, तब जाके। लेकिन वो एक्चुअली क्या होता है ना, वो बोलने के बाद भी वो ग्रुप क्या है, वो उसी टॉपिक पे डिस्कस करने लगता है, उसको कन्विंस ही नहीं कर पाते हैं कि इस साइड में आओ, तो 3-4 लोग उसी के बारे में डिस्कस करने लगते हैं, तो एक प्रॉब्लम ये भी आ जाती है। एक चीज हमेशा याद रखना, जो मैं सबको बोलती हूँ जीडी में, फाइनल की जो जीडी होगी ना, अभी तुम लोग बोलते हो कि मेरा टेस्ट हो जाए, मैं क्या बोलता हूँ, मेरा पॉइंटर चेक हो जाए, वहां पे तुम्हें लगता है कि तुम्हें नोट कर रहा है कोई पर्सन, चेक कर रहा है और तुम्हारी जॉब डिसाइड कर रहा है उससे, तुम लोग इसी तरह से लड़ोगे, यू वोंट। अभी मैं तुम्हें टाइम भी अगर 12 मिनट्स के लिए देती हूँ, 30 मिनट्स में हर पर्सन पार्टिसिपेट कर सकता है, विल कीप इट फॉर 30 मिनट्स टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, ठीक है? 30 मिनट्स का भी टाइम करके रखते हैं, उसमें हर कोई,
जो पर्सन 12 मिनट्स में पार्टिसिपेट करके एक अपना इम्पैक्ट डाल सकता है, लाइक टुडे आई कुड नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम अनिकेत इज अ वेरी सॉफ्ट पर्सन हु इज स्पीकिंग, अभी इसकी बहुत चीजें चेंज होने वाली है, बट थ्रू योर क्वालिटी पॉइंट्स यू कैन विन इट आउट, राइट। और उसमें आप कम बोलोगे, ये नहीं बोलोगे, ज्यादा नहीं बोलोगे, ओवर एक्साइटमेंट होना भी बहुत नेगेटिव है, यू कैन बी एलिमिनेटेड एट द वेरी स्टार्ट, एलिमिनेट हो जाओगे, कोई फायदा नहीं है अगर किसी को चांस नहीं दोगे बोलने का, ठीक है। मैम सो ये प्रॉब्लम हो रहा था मेरे को, तो बेसिकली आई हैड मेनी पॉइंट्स बट देयर वाज सो मच। आई फॉरगॉट लव हु हैज बीन देयर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, राइट। लव का तो एक भी पॉइंट नहीं सुना मैंने, सो लव इट इज first GD, no one, these people won't let you speak. This happened with Aniket also. Yatendra also has joined, I think, one day before only, and today he at least spoke something. Yes, ma'am. Right? So at least थोड़ा ये आपको लगेगा, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन थोड़ा बोलना स्टार्ट करोगे. These people, Ramakant, Dheeraj and Ayush, Satyam, they have been speaking since long. उनको पता चल गया कि हमने यहाँ, we are the bosses over there and they don't let you speak. But you will grow it after 1 day, 2 day. If you have quality points, they won't be able to make an impact. I'm telling you that. So, ma'am, actually, how do I come in between? Because these, like, I tried to come in between many times that I would like to add to this point. I have a counter to this point. But, like, since many people are speaking, वो फिर दब जाता है. Are you understanding? Like, that will be there. उसमें कैसे करना है, जैसे रामाकांत बोल रहा है, एक तो कट नहीं करना, कहीं मैंने एक चीज बोलनी थी, I don't know who was speaking. उसमें ना आई थिंक आयुष ने स्टार्ट कर दिया, किसने स्टार्ट कर दिया, बीच में ही कट करना शुरू कर दिया, जो नहीं होना चाहिए, बीच में नहीं कट करते हैं कभी किसी को, ये आपकी अटेंटिवनेस करती है वो खराब. यू नो व्हाट आर द फैक्टर्स बीइंग चेक्ड इन अ ग्रुप डिस्कशन, हाउ अटेंटिवली यू आर लिसनिंग इन अ ग्रुप डिस्कशन, दैट इज व्हाट मैटर्स. कि मैंने अभी प्रमोद ने ये पॉइंट बोला था, यंग वाला, कि यूथ है, साथ में उसी टॉपिक पर टारगेट करता रामाकांत की, यूथ है और हम क्या कर सकते हैं, उसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं, मतलब सेम डायमेंशन में चलती है ग्रुप डिस्कशन. तुम लोगों को क्या होता है, जो मैंने पॉइंट लिखा है मैंने वही बोलना, जो नेगेटिव है, ठीक है, ये नहीं है, दिस इज नॉट अ वे एक्चुअली यू आर डूइंग अ ग्रुप डिस्कशन. तभी तो बोल रही हूँ, यू विल लर्न विद नंबर ऑफ फैक्टर्स यू विल प्ले, ये चीजों को ध्यान रखना है. कट नहीं करना शुरू करना. इफ यू विल कट अ पर्सन 2-3 टाइम्स, द पीपल आर गोइंग टू एलिमिनेट यू आउट, कोई फायदा नहीं, बाहर निकल जाओगे. पेशेंसली लिसन करो, पेशेंटली लिसन इट आउट. उसके बाद जैसे ही पर्सन का खत्म होगा, यू जस्ट आउट, ओके आई एग्री विद यू धीरज, आई वुड लाइक टू पुट एन टॉपिक, उस तरह से. और I told right now to Pramod also, I want to add a new dimension to this topic. Talking about the challenges, we should also bring that patience is a watchword. Ending बहुत अच्छी हो सकती है इस टॉपिक पे, इंडिया के बारे में, कि पेशेंस सबसे ज्यादा जरूरी है इस फैक्टर में, राइट. एंड पेशेंस से हम देखेंगे कि इंडिया ने अभी तक कितना प्रोग्रेस किया. वी हैव बीन फ्रॉम द स्लेव्स, वी हैव बिकमिंग अ नर्शिंग कंट्री, एंड नाउ द पीपल हु वर एक्चुअली रूलिंग ऑन अस, now they are trusting us for something, you can say, for the build-ups. So why can't India become again the best of all? So that could be a beautiful ending to the group discussion. You do not make it. मैम लेकिन सभी लोग उस टाइम का वेट कर रहे होते हैं जब सामने वाला बंदा खत्म करता है और फिर उसके बाद सभी लोग एक साथ गिरते हैं उसके ऊपर, तो फिर प्रॉब्लम होता है. तुम लोग कभी ग्रुप डिस्कशन में तभी बोलो ना क्वालिटी पॉइंट्स, यहाँ तो तुम इंट्रोडक्शन ले लिया करो, तुम्हें इतना शौक है ना, जैसे एसजीवन की होती है, सबको कंक्लूड करने का चांस मिलता है, उससे भी बहुत अच्छा चेक होता है. आई थिंक टुडे, नॉट टुडे, tomorrow in group discussion I'll give chance to everyone to conclude. तुम लोग प्रैक्टिस करते हो कि तुम लोग इंट्रोड्यूस कर पाओगे, फ्यूचर में नहीं कर पाओगे, अदरवाइज डोंट टेक दैट रिस्क. जैसे धीरज ने दोनों ट्राई करके देखा, धीरज दोनों में फेल हो गया अभी तक, इंट्रो भी किया, कंक्लूड भी किया, नहीं अच्छा जा रहा, मतलब उस चीज में प्रैक्टिस कैसे करनी है बताना पड़ेगा, ठीक है. एक तो अब जो हमने टॉपिक किया है, ईवी व्हीकल्स वाला किया था, ये वाला किया है, नोट करो पॉइंट्स जो लग रहे हैं, अपनी तरफ से भी ढूंढ लो. जो मैंने तुम्हें रेशियो ऑफ दिस पॉइंट्स बोले थे अबाउट द मॉनिटरी, वो भी नोट करो, थोड़ा सा गूगल सर्च करो, यू विल गेट द बेस्ट ऑफ द पॉइंटर्स. इसको कल मैं टॉपिक एक रिलेटिव लेकर आऊंगी आपके लिए, राइट, रिलेटिव टॉपिक बेस्ड ऑन इंडिया और समथिंग, सपोज अबाउट द बैंकिंग सेक्टर्स बीइंग कोलैप्स्ड और यू कैन से बीइंग मर्ज्ड, तो उससे रिलेटेड आएगा. देखना कि क्या हम दोनों में से कौन कौन से पॉइंट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है. डिफरेंट टॉपिक, बट यू हैव टू यूज एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ फ्रॉम टुडेज डिस्कशन और यस्टरडेज डिस्कशन. क्लियर? मैम मैंने इंट्रोडक्शन दिया था मैम, वो कैसा था? इंट्रोडक्शन में गलतियां थी रामाकांत, आई कुड नॉट पॉइंट यू आउट. मैन्युफैक्चरिंग बता रहे हो, बाद में आपने उसमें आई थिंक वेयर इज यू टोल्ड अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, देन यू टोल्ड अबाउट पॉपुलेशन, देन यू टोल्ड अबाउट चैनल्स. कितना सारा कंटेंट दे दिया, एक पे फोकस करना चाहिए था ना, गलती वहां पे थी, एक पे फोकस नहीं किया, बहुत ज्यादा कंटेंट दिया. क्लियर? दैट वाज नेगेटिव. कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन वाज नॉट गुड. मैम एक इंट्रोडक्शन को लेके पॉइंट था मैम कि कंसाइज कैसे रखें उसको कि एकदम परफेक्ट बने, और फिर उसके साथ जो डायमेंशंस देने होते हैं, तो डायमेंशंस कैसे दें? अगर हमको उस टॉपिक के बारे में बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है तो डायमेंशंस कैसे दे सकते हैं?
पहले टॉपिक के बारे में बता दिया, लाइनर, गुड मॉर्निंग एवरीवन, द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज दिस, टोल्ड अबाउट इट। सेकंड लाइनर वुड बी एन इंट्रोडक्टरी लाइन। सपोज आज टॉपिक क्या था, इंडिया बन सकती है नहीं बन सकती है, वट एवर द टॉपिक वाज, ठीक है, कोई भी ईवी व्हीकल्स वाला भी यही था टॉपिक, तो इट वुड बी दैट इट इज काइंड ऑफ, यू कैन से द टॉपिक इज ऑल अबाउट अ क्वेश्चन वेयर वी हैव टू मीट इट इन 2 डायमेंशंस। वी कैन टॉक अबाउट द 2 डायमेंशंस। एक याद रखो, जब भी 2 टाइप के टॉपिक आएंगे, मैं उसको बोल दो या तो 2 डायमेंशन बोल दो या डबल एज स्वॉर्ड बोल दो, ये लाइन याद करो। मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स दूंगी जो बोलने वाले होते हैं, जैसे हम बोलते हैं थैंक यू का वे होता है डिफरेंट डिफरेंट बोलने का, उस तरह से जब तुम्हें वर्सेस वाले पॉइंट्स आ जाए, हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क, दिस वर्सेस दिस, कैन इंडिया बिकम, कैन इंडिया नॉट बिकम, सो टॉक इट लाइक दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच इज अ डबल एज स्वॉर्ड, it has both the advantages and disadvantages, and I would like my teammates to discuss on this topic. अगर तो तुम्हें इंट्रोडक्टरी कोई भी लाइन नहीं आती तो छोड़ देना, इस तरह से स्टार्ट कर देना, डबल एज स्वॉर्ड करके या कुछ ऐसे 2 डायमेंशनल टॉपिक करके, ठीक है। अगर सिंपल लाइन है, गुड प्रोवर्बियल टॉपिक है, प्रोवर्बियल टॉपिक किया अभी तक सब लोगों ने कि नहीं किया, जैसे इफ यू विल थिंक गुड यू विल हैव गुड थिंग्स इन योर लाइफ, समथिंग लाइक दैट, ये टॉपिक। अब ये क्या पॉजिटिव टॉपिक है, so उसके लिए लाइनर्स होती हैं, फिक्स्ड लाइनर्स, that this is a topic which brings positivity in all of us and it is a proverbial topic and we have to discuss on this topic that we are already aware कि किस तरह से कोई कोट याद आ जाए, कोई हार्ड वर्क से रिलेटेड कुछ ऐसे, वो बीच में डाल दी। मतलब आपको काउंटर करना है, वर्सेस का अलग हेडिंग आएगा, प्रोवर्बियल का अलग हेडिंग आएगा, जीडीपी, या फिर आपको, मैंने आईओसीएल की डॉक्यूमेंटेशन सबने देखी है, कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, 6 तरह की कैटेगरीज होती हैं। देखी थी वीडियो या नहीं देखी थी अभी तक? Good, great. You have not seen the video, right? मैंने देखा था मैम, नोट डाउन भी कर लिया था सारे। I'll forward that video again. Do work it out. आपको किस किस स्ट्रीम्स में आएगा, मैं एक एक लाइन सबकी लिखवा दूंगी, उसको थोड़ा चेंज करके बोलने की कोशिश करना। जैसे एजुकेशन सेक्टर से अगर आता है तो हमने क्या लाइन बोलनी है, ठीक है। अगर मैंने उस दिन बोला था कि अगर तुम्हें जैसे बार्टर सिस्टम से हम पॉलिसी, पैसे पे आता है तो कैसे उस तरह से बोलनी है लाइन, मॉनिटरी पे आता है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड आता है तो क्या बोलना है, करंट से रिलेटेड आता है तो क्या बोलना है, 4-5 चीजें हैं, उसकी फिक्स लाइन याद कर लेना, थोड़ा थोड़ा चेंज करके, दैट आई कैन डू फॉर यू, क्लियर। वो हम एक सेशन में सिर्फ डिस्कशन करेंगे, विल नॉट डू अ जीडी इन द आफ्टरनून, विल ओनली गिव यू पॉइंट्स टू लर्न, क्लियर अबाउट इट? Ma'am, we have done like 4-5 GDs till date, और ma'am I have realized कि कुछ मतलब there is pattern, like some social के ऊपर कोई आ सकता है GT, या फिर बिजनेस के स्टडी पे आ सकता है, या फिर मतलब ये इस टाइप के टॉपिक जो अभी आपने दिया उसको कैसे टैकल करना है, जहाँ पे हमको फिगर और फैक्ट लेके बात करना है। तो फिगर्स मतलब तभी मैंने बोला ना, जिन टॉपिक्स में नहीं आता ना, फिगर वाले टॉपिक भी आ सकते हैं, पॉपुलेशन, जीडीपी, ये वाले टॉपिक्स इसमें जेनरिक चलते हैं, जैसे एग्जांपल्स के बेस पे। जब तुम्हें टॉपिक के बारे में नहीं आता तुम कैसे खेल सकते हो, एग्जांपल्स के थ्रू, नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड। आई टेल यू दोस हैक्स आल्सो, कैसे करना है। जैसे मैं एक टॉपिक कल, मैं आई एम गोइंग टू फाइंड अ डिफिकल्ट टॉपिक फॉर यू टुमारो, जिसमें फैक्ट्स फिगर्स के बिना करके दिखाना मुझे। फैक्ट्स एंड फिगर्स आज भी तुम लोगों ने मेंशन नहीं किए, कितनी इन्वेस्टमेंट की है इंडिया ने, कहाँ की है, नहीं पता था किसी को, बट स्टिल द जीडी वेंट, राइट। तो जरूरी नहीं है कि फैक्ट्स डालने ही डालने, और जब नहीं आते ना तो मत बोलो फैक्ट्स, गलत नहीं बोलना, यू डोंट हैव टू ब्लफ, यू डोंट हैव टू प्रोवाइड रॉन्ग इंफॉर्मेशन, दीस आर द 2 थिंग्स व्हिच यू नीड टू टेक इनटू कंसीडरेशन, ठीक है। गलत नहीं। आई टेल यू सम थिंग्स, अभी आपका दूसरा जीडी था मेरे साथ प्रमोद की थर्ड, दूसरा सेकंड, दूसरा ना, आई हैव देयर इज अ गिवन लॉन्ग रन 4-5 GDs till date, but आपके साथ मेरा दूसरा है। Because I have just known about the people who are attending GDs regularly. So do attend GDs regularly. That is very important because otherwise I also need the feedbacks कि कहाँ गलतियां कर रहे हो, मैं उसी पे चैनलाइज कर पाऊंगी, ठीक है। Yes, ma'am.